that is a private limited company. So I think we'll wait for him. You can start. We can start? Yeah, you can start. Okay, sure. Okay, sure. So welcome everyone. And let's see what all we need to form a private limited company. So a private limited company is a company that is privately held for small business. To start a company, a minimum number of 2 members are required and a maximum number of 200 members as per the provisions of the Companies Act. The liability of each member or shareholder is limited. It means that if company faces loss under any circumstances, then its shareholders are not liable to sell their own assets for payments. The personal individual assets of the shareholders are not at risk. It is mandatory for all the private companies to use the phrase private limited after its name. So following are some of the privileges of a private company. Private company needs only 2 persons to form. Minimum number of directors required is 2. Minimum quorum for company meetings, 2 members in person. Only ordinary resolution required against special resolution for approval of ESOP. Rule 3 of the company's rules 2014 exempts private company from having a woman director unless it is subsidiary of public company. Individual resolution not required for appointment of more than 1 director in case of private company. The private companies need not issue prospectus or file statement in lieu of prospectus with the registrar of companies. It is not required to keep and maintain index of members. Private company is not required to hold statutory meetings and file statutory report with the registrar of companies. No limit on minimum paid up capital. In case of private limited company, the shareholder should bring the equity capital equal to the paid up capital as mentioned in the MOA, that is Memorandum of Association. Next, any other amounts introduced by directors for business expansion is credited to directors' current account or unsecured loan from directors. Company can pay interest on unsecured loans taken from directors or shareholders. The company can take the loan from directors and their relatives or shareholders, but not from any outsider. If it's taken from outside, then it is treated as deposit. In such a case, penalty will be more than 100% of the amount received. If a customer has paid any amount, then raise an invoice against it within 365 days. Otherwise, it will be treated as deposit. So, reserves and surplus. Profit earned by the company is transferred to reserves and surplus account. The reserves and surplus is treated as equity capital for calculating debt equity ratio. Such reserves and surplus cannot be withdrawn directly, but they can be withdrawn by way of dividend. Advantages of private limited company. Private limited company is legal entity separate from its members. A company has perpetual succession. It means that it is continued or has uninterrupted existence until it is legally dissolved. Limited liability means the status of being legally responsible only to a limited amount for debts of a company. Shares of a company limited by shares are transferable by a shareholder to any other person. Next, as everyone wants to minimize its tax burden, thus company as per the Income Tax Act 1961 has another main benefit of incorporation towards taxation. Companies are often taxed at a lower rate and are provided with better tax benefits as compared to other forms of business organization. As a juristic legal person, a company can sue in its name and be sued by others.
Private limited company is better recognized in case of global or export business. A company enjoys better revenues for borrowing of funds. It can issue debentures, secured as well as unsecured. Even banking and financial institutions prefer to render large financial assistance to company rather than partnership firms or proprietorship concern. Private company can purchase property movable or immovable in its name. Some disadvantages of private limited company. Registration of private limited company is mandatory. A private limited company or other than OPC, that is one person company, requires minimum 2 persons to act as directors and shareholders. More compliance as compared to other entities. So some preliminary expenses of a company. The expenses incidental to the formation of a company is termed as preliminary expenses. These expenses are amortized over a period of 5 years. 1/5 of such expenses are allowed each year starting from the year when the business is set up. Next page. Depreciation as per Companies Act. Depreciation is calculated by considering useful life of asset, cost and residual value. Any method, written down value or straight line method can be used. Deferred tax asset and deferred tax liability. In some cases, there is a difference between the amount of expenses or incomes that are considered in books of accounts and the expenses or incomes that are allowed or disallowed as per Income Tax Act. A common example of this is depreciation. For companies, depreciation rates to be considered in books of accounts are defined in Companies Act. But while calculating income tax, the depreciation will be allowed only as per rates given in Income Tax Act. Therefore, difference between income as per books and taxable income as per Income Tax Act may arise. If the income as per books is more than taxable income, then we have paid less tax as per income in the books, and we have to pay more tax in future. Hence, it is recorded as deferred tax liability, that is DTL. Similarly, if income as per books is less than taxable income, then we have paid more tax and have to pay less tax in future. So it is recorded as deferred tax asset, that is DTA. Note that DTA and DTL are temporary differences. This temporary difference is settled in next financial year or near future. When the future benefits for which DTA is created is realized, then the DTA is reversed and same is the case for the DTL. Example of deferred tax calculation as per AS 22. So depreciation as per Companies Act is say 2,000 rupees. Less depreciation as per Income Tax Act, say 1,000 rupees. So difference is 1,000 rupees. Tax 25% is the deferred tax asset or liability. That's it. That is 250 rupees of the difference amount. So next page. Mandatory compliances. A company has to fulfill following mandatory compliances. Preparation of financial statements, balance sheet, profit and loss statements, all ledgers, depreciation schedule, trial balance. Failure to comply with this compliance is punishable with imprisonment up to 1 year or with fine as prescribed in the Companies Act or both. Income tax return filing. Non-compliance may lead to penalty, which will attract interest under Section 234A. And if the assessee fails to file its income tax return within the prescribed time, otherwise the company shall be liable to pay interest at 1% per month or part of the month from the due date of filing of return to the actual date of filing of its return. Penalty can be further levied for non-filing of returns under Section 271F. Annual ROC filings. The non-compliance may attract additional fees as per specified MCA slabs, which can extend up to 12 times or of original fees. Apart from this provision, striking off the company name from ROC
and prosecution can also be initiated by the ROs. So ये आगे का पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. We'll stop HR here. sir. Yes. We'll stop here. Okay, okay, over to you, sir. Good evening and welcome all. Thank you, madam. आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी कंसर्न देखा, पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग पढ़ा है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये भी हम लोग लास्ट वीक में देखा है. अभी जो नेक्स्ट है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत सारे कंप्लायंस है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. हम लोग इसको डिटेल्स में आपको क्या क्या देखना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ये हम लोग आपको एक्सप्लेनेशन किया होगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज कंपनी प्राइवेटली हेल्ड बाय द पीपल्स. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स हो सकता है. द लायबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर इज लिमिटेड. मींस लायबिलिटी जो है शेयर होल्डर का जैसे एलएलपी में लिमिटेड है, ऐसे इधर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आपका लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. जैसे एलएलपी में भी लिमिटेड है, बट बाकी पार्टनरशिप फर्म और प्रॉपरेटर में आपका लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है. इसके लिए वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज योर लायबिलिटी विल बी लिमिटेड. लायबिलिटी लिमिटेड होने से क्या होगा, आपका पर्सनल एसेट को ज्यादा रिस्क नहीं है. आपका जितना आपका कैपिटल है उतना ही आपका बिजनेस में आपके लिए रिस्क है, बाकी आपका पर्सनल एसेट का रिस्क नहीं है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या क्या प्रिविलेजेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आपको क्या क्या एडवांटेजेस या फायदा है वो हम लोग देखेंगे. प्राइवेट कंपनी नीड्स ओनली 2 पर्सन्स. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको फॉर्म करना है, 2 लोग इज मोर देन इनफ. 2 लोग स्टार्ट कर सकते हैं. मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए. मीटिंग फोरम के लिए भी 2 लोग सफिशिएंट है. ऑर्डिनरी रेजुलेशन से आप ईसॉप भी अप्रूवल कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल रेजुलेशन पास करना जरूरी नहीं है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर का कंपलसरी नहीं है. बाकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एंड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आपका, तो वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी बोर्ड में होना चाहिए, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसका जरूरत नहीं है. इंडिविजुअल रेजुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड मोर देन 1 डायरेक्टर्स. आपको मोर देन 1 डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना है, सेपरेट रेजुलेशन करने का कुछ जरूरत नहीं है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लाइव ऑफ प्रोस्पेक्टस, आरओसी को सबमिट करने का जरूरत नहीं है. कंपनी के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी मेंटेन करना जरूरत नहीं है. ये मैंडेटरी नहीं है, आप खुद आप कर सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग and not required to submit the statutory report to the ROC. मिनिमम कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट आप रख सकते हैं. जैसे आप बैंक लोन के लिए जाएंगे तो बैंक आपको पूछेंगे आपका पेड अप कैपिटल कितना है, बट एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से इसका जरूरत नहीं है. मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए. जैसे आप मेमोरेंडम में आपका पेड अप कैपिटल आपने मेंशन किया, सपोज 1 लाख रुपए आपने पेड अप कैपिटल दिखाया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. उस टाइम पे आपको आपका इंडिविजुअल शेयर होल्डर के अकाउंट से कंपनी का अकाउंट में करंट अकाउंट ओपन करके आपको शेयर होल्डर का जो भी पोर्शन है आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो आरओसी को भी सबमिट करना पड़ता है. जो भी अमाउंट अपार्ट फ्रॉम द शेयर कैपिटल, सपोज डायरेक्टर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, शेयर होल्डर कुछ और अमाउंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया अपार्ट फ्रॉम पेड अप शेयर कैपिटल, इट इज ट्रीटेड एज अनसेक्योर्ड लोन्स और डायरेक्टर्स करंट अकाउंट. सपोज डायरेक्टर ने कंपनी को पैसे दिया, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम लोग ये बोल सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप लोन अदर देन डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर एंड देयर रिलेटिव्स से आप पैसे नहीं ले सकते. मींस जैसे आपका प्रॉपर्टरशिप में, पार्टनरशिप फर्म में कुछ पैसे कम पड़ा तो आप क्या करेंगे, आपका फ्रेंड से पैसे लेंगे. बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली आपका रिलेटिव्स से ही आप पैसे ले सकते हैं.
इसके सबसे ध्यान रखना है। सपोज अपने फ्रेंड से लिया तो क्या होगा, आपका 100% उसका पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इट इज ट्रीटेड एज ए डिपॉजिट। जैसे आप डिपॉजिट्स लिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, उसके लिए पेनल्टी है 100%। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये देखना है, कोई भी लोन आपका कंपनी में आया वो एक तो शेयर होल्डर का होना चाहिए, डायरेक्टर का होना चाहिए, नहीं तो उनका रिलेटिव से होना चाहिए। अदर देन दिस, इफ यू आर रिसीव एनी अमाउंट्स, इट इज ट्रीटेड एज ए डिपॉजिट्स एंड पेनल्टी विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 100% और मोर ऑफ दैट। बहुत सारी कंपनी में कस्टमर से भी पैसे आया हुआ रहते बट उसका बिल नहीं हुआ रहते। बाकी प्रॉपरेटर कंसर्न में, पार्टनरशिप फॉर्म में पैसे आया, आपने बिल नहीं किया, सिर्फ वो जीएसटी के लिए इंपैक्ट होगा, इनकम टैक्स के लिए इंपैक्ट होगा। बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपका जो कस्टमर से पैसे आया हुआ है बट 365 डेज मीन्स 1 साल तक आपने उसका बिल नहीं किया, सेल बिल आपने नहीं किया, तो भी आपका वो डिपॉजिट कंसिडर हो सकता है। उसके लिए भी 100% पेनल्टी है। उसके लिए आपको ये देखना है, एक तो आपका कंपनी में जो भी पैसे आया हुआ है वो अदर देन शेयर होल्डर डायरेक्टर का रिलेटिव से नहीं आया हुआ है, और कस्टमर से आया तो वो 365 डेज के अंदर उसका बिल भी हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखना। जिसे हम लोग प्रॉपरेटरशिप में और पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉपरेटर कैपिटल अकाउंट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थोड़ा इसका अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे आपका इक्विटी कैपिटल, पेड अप कैपिटल होगा, जो भी उन्होंने इनिशियल कैपिटल कंपनी में इनिशियल कैपिटल डाल देंगे। जो प्रॉफिट है, जो कंपनी का प्रॉफिट है, हम लोग बाकी केस में प्रॉपरेटरशिप में और पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉपरेटर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को क्रेडिट करते हैं। उसके लिए प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी रिजर्व एंड सरप्लस, इट इज ट्रीटेड एज ए इक्विटी कैपिटल फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियोज। हम लोग प्रीवियस का चैप्टर में देखा है डेट इक्विटी रेशियोज कितना इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो डेट इक्विटी रेशियो कितना है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो देखा हुआ है। उसके लिए क्या क्या कंसिडर होते हैं, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए उनका जो इक्विटी कैपिटल है वो पार्ट ऑफ इक्विटी, एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये भी आपका पार्ट ऑफ इक्विटी में कंसिडर होता है जब आप डेट इक्विटी रेशियोज कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कैन नॉट बी विथड्रॉन डायरेक्टली बट दे कैन विथड्रॉन बाय पेइंग ऑफ डिविडेंड टैक्स। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जैसे आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, प्रॉपरेटर कैपिटल अकाउंट होता है, आप डायरेक्टली विड्रॉल कर सकते हैं। आपका इंडिविजुअल अकाउंट से आप आपका कैपिटल विड्रॉल कंपनी से कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रिजर्व एंड सरप्लस विड्रॉल नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग आप सजेस्ट करेंगे जितना भी चाहिए उतना डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ले सकते हैं, उधर कुछ लिमिटेशन नहीं है। टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट आप डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ले सकते हैं। एक बार कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस में पैसे गए, आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। विड्रॉल करना है तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है, रिजर्व एंड सरप्लस आप विड्रॉल नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एडवांटेजेस क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सिर्फ बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बट वो एज गुड एज पर्सन जैसे वो काम करता है। इट इज टोटली सेपरेट। जैसे हम लोग बात किया आपका पर्सनल एसेट को कुछ रिस्क नहीं है, ये कैसे रिस्क नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आल्सो एक सेपरेट एंटिटी है, जो भी उनके ऊपर केस डाल सकते, उसके लिए इंडिविजुअल डायरेक्टर के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आल्सो हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन। जैसे प्रॉपरेटर कंसर्न है, उधर प्रॉपरेटर का कुछ डेथ हुआ, कुछ भी हो गया तो कंपनी बंद हो जाता है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसे नहीं है, कोई भी शेयर होल्डर वापस आके वो बिजनेस कंटिन्यूस कर सकते जब तक वो लीगली आपने उसको डिसॉल्व करने तक। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे ही चलते रहेगा, इसका एंड बाकी जैसे नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी मींस द स्टेटस ऑफ बीइंग लीगली रिस्पांसिबल ओनली टू लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ डेट ऑफ ए कंपनी। इधर लायबिलिटी भी इसका लिमिटेड है, जैसे हम लोग बात किया, इधर जितना आपका शेयर कैपिटल है उतना ही आपका लायबिलिटी है, उससे ज्यादा आपका पर्सनल एसेट के लिए रिस्क नहीं है। शेयर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बाय शेयर होल्डर टू एनी अदर पर्सन। सपोज आपको लगता है मैं अभी कंपनी से बाहर आना चाहता है, तो आप इजीली दूसरों को, आपका जो शेयर होल्डिंग है, आप दूसरों को ट्रांसफर करके आप बाहर आ सकते। इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफर द शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है टैक्सेशन। जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओनली 15% टैक्सेशन है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, हम लोग आगे देखेंगे।
बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा अच्छा सेविंग इसमें ऐसे है, आप मैक्सिमम 22 to 25% आपका इनकम टैक्स बैठेगा। बाकी केस में सर्टेन लिमिट क्रॉस होने के बाद आप प्रोपराइटर हैं तो आपको 30% पे टैक्स करना पड़ेगा, और पार्टनरशिप और एलएलपी के तो 30% टैक्स ही है। और जिससे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहा तो आपको 15% है, बाकी केस में आप 22 और 25% अप टू 400 crores ऑफ योर टर्नओवर, उधर आपको टैक्सेशन में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुडिस लीगल पर्सन, ये सेपरेट पर्सन है, उसके लिए आप कंपनी के ऊपर भी केस डाल सकते हैं और कंपनी खुद का नाम पे दूसरों को भी केस डाल सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्टर को आपको कुछ ये नहीं करना है, उसको जाके उनका नाम पे केस करने का जरूरत नहीं है। कंपनी कैन आल्सो, आप डायरेक्टली कंपनी भी उनका नाम पे केस डाल सकते हैं और कंपनी के नाम पे भी बाहर का लोग डाल सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इधर बाकी डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स का बीच में नहीं आएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रिकॉग्नाइज्ड बेटर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। जैसे आपका बिजनेस एक्सपोर्ट है, मींस आप कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, आपका सर्विस इंडस्ट्री है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर का लोग आपको इमीडिएट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपका एग्जिस्टेंस एमसीए साइट में जाके वो चेक कर सकते हैं, मींस आपका कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है, आपका रजिस्टर ऑफ कंपनी किधर है, ये सब चीजें सपोज आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो लोग देख सकते हैं। जैसे प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए ऐसे सेपरेट उधर साइट नहीं है, उसको जाके आपका कंपनी एग्जिस्टेंस है क्या नहीं, उधर डायरेक्टर कौन है, प्रोपराइटर कौन है, सॉरी पार्टनर्स कौन है और प्रोपराइटर कौन है, ये देखने के लिए उनके लिए कुछ भी सोर्स नहीं होता है। उसके लिए एज कम्पेयर टू अदर प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बाहर का लोग ज्यादा भरोसा करता है। उसके लिए हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे, आपको सपोज बिजनेस ग्लोबल में करना है, एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना है, यू गो फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनी एंजॉय द बेटर रेवेन्यू बोरोइंग फंड्स, इट कैन बी इशूड डिबेंचर्स। जैसे आज सपोज आप बैंक लोन प्रपोजल के लिए आप जाएंगे, सपोज आप बिजनेस स्टार्टअप किया एज ए प्रोपराइटर बोल के, एज ए पार्टनरशिप बोल के आपने स्टार्टअप किया बिजनेस, एंड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल के आप स्टार्टअप किया बिजनेस। बैंक ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी होता है और उसके लिए सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इससे जुडिस लीगल पर्सन है, उसके लिए बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड को लोन देंगे। जैसे अभी सीजीटीएम स्कीम में आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट लिमिटेड, बैंक ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड को प्रीफर करता है। उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इवन रेटिंग भी ज्यादा होता है। सपोज आपको प्रोपराइटर कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में रेटिंग इसमें 2 रहा तो इसको 1 रेटिंग देके आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सकते हैं। और दूसरा इसका जो एडवांटेजेस है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम मिल सकते हैं और प्रोसेसिंग चार्जेस भी आपको बैंकर कम दे सकते हैं। इसका और एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है, सपोज आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय बोल के, सपोज आपका फॉर्म 16 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इश्यू किया, आप सपोज हाउसिंग लोन के लिए गया, उधर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा एज कम्पेयर टू एज ए एम्प्लॉय इन द पार्टनरशिप फॉर्म एंड प्रोपराइटरी कंसर्न। इसके सबसे बड़ा फायदा इसमें है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने का, आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाउसिंग लोन के लिए मिलेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन परचेज प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, प्रॉपर्टी भी कंपनी के नाम पे परचेज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एडवांटेजेस तो बहुत सारे, इसके साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? आपको रजिस्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एमसी में आपको रजिस्टर करके लेना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जब आप नेम एप्लीकेशन इज वेरी, आपको जो नेम चाहिए वो नेम मिलना बहुत मुश्किल है। सपोज आप XYZ कंपनी का नाम आप स्टार्ट किया तो XYZ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको XYZ कंपनी नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपको नेम पे होगा। जब आप कंपनी स्टार्ट करेंगे उसके लिए जितना जल्दी आप प्राइवेट लिमिटेड से बिजनेस स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका जल्दी आप वो नेम को ब्लॉक करेंगे। आप सपोज आप XYZ कंपनी से आप प्रोपराइटर बोल के आप बिजनेस चालू किया, नहीं तो पार्टनरशिप फॉर्म बोल के आप बिजनेस चालू किया, दूसरा कोई ऑलरेडी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया उन्होंने, तो आपको वो कंपनी नहीं मिलने वाला है। उसके लिए जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप डिसीजन लेके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिजनेस चालू करना बहुत अच्छा रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 लोग तो कंपलसरी लगेगा। अभी नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है OPC, वन पर्सन कंपनी, इधर एक ही पर्सन लगता है। दिस इज ऑल्सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इतना ये पॉपुलर नहीं हुआ इंडिया में, बट आप 1 पर्सन कंपनी भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। मोर कंप्लायंस एज कम्पेयर टू अदर एंटिटीज।
जैसे आप प्रोप्राइटरी कंसर्न में कंप्लायंस पार्ट देखो तो एक आपने शॉप एक्ट ओपन किया, शॉप एक्ट लिया, एक आधार उद्यम आधार ले लिया, अब तो करंट अकाउंट ओपन करके जीएसटी नंबर लेके बिजनेस चालू कर सकते। जैसे सेम पार्टनरशिप फॉर्म में भी है। और आपका जब इनकम टैक्स रिटर्न आपने भर दिया, सपोज आप ऑडिट में है, ऑडिट इनकम टैक्स का कर दिया, जीएसटी रिटर्न भर दिया, आपका काम खत्म हो गया। बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और एक नया अथॉरिटी आ जाती है, दैट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उनको भी आपको रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। साल में एक बार आपको एनुअल रिपोर्ट भरना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्म्स भी उसमें भरना पड़ते हैं आपको, वो हिसाब से कंप्लायंस पार्ट आपका बढ़ेगा। वो कंपनी सेक्रेटरी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा ये काम के लिए। कंपनी सेक्रेटरी विल टेक केयर ऑफ योर एनुअल फाइलिंग एंड एनी अदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड एजीएम, सब जो भी काम आरओसी का रिलेटेड काम है, आपको और एक कंप्लायंस पार्ट बढ़ेगा। बट कंपेरेटिवली आपका जो एडवांटेजेस है इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू कंप्लायंस पार्ट। आपको कैसे भी कंप्लायंस पार्ट करना ही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करने से आपका ये एडवांटेज सब आप ले सकते हैं। अंजलि मैडम, ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। Sir, we have covered this. Already covered. I'll be starting from Okay. manufacturing private limited. Yeah. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? जब आप कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो कुछ आप एक्सपेंसेस किया हुआ रहते हैं, मींस आरओसी फीस रहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का फीस रहता है, ये सब दैट इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। आप डायरेक्टली इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट न करते हुए आप इसको 5 इयर्स में राइट ऑफ कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन जैसे इनकम टैक्स में रेट्स होता है बहुत सारे। जब हम लोग प्रॉपर्टी कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म में जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करता है, तो हम लोग एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं। बट एज इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डेप्रिसिएशन जो होता है उसका यूजफुल लाइफ के ऊपर होता है, मीन्स पर्टिकुलर रेट नहीं होता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से 40% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यूजफुल लाइफ कितना है उधर? 3 इयर्स, कंप्यूटर के लिए 3 इयर्स लाइफ दिया हुआ है कंपनी एक्ट के हिसाब से। ऐसे उधर 2 मेथड होता है, एक इधर इनकम टैक्स में भी मेथड है और इधर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 मेथड है, एक डब्ल्यूडी मेथड और एसएलएम मेथड कैन बी यूज्ड। डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये कैलकुलेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंट लोगों के लिए, तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है डेफर्ड टैक्स असेट्स होता क्या है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। ये इवन सीए स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत सारे एग्जाम में ये पॉइंट आता है। तो डेफर्ड टैक्स असेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी समझ के लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एक्सपेंसेस जो बुक्स में रहते हैं, वो कुछ एक्सपेंसेस अलाउड होता है, कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड होता है। जो डेफर्ड टैक्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है, वो टाइमिंग डिफरेंस एंड टेम्पररी डिफरेंस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, जब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग फाइनल करते हैं, वी आर टेकिंग डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कंपनी एक्ट के हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन का एंट्री बुक्स में करते हैं। जब आप इनकम टैक्स पेमेंट के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे, तो वो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मीन्स जब आप सपोज आपका नेट प्रॉफिट है 10,000 रुपीज और डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी के एक्ट के हिसाब से 2,000 रुपीज है और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से 1,000 है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स वो कितना हुआ? 10,000 प्लस 2,000 डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट माइनस डेप्रिसिएशन एज पर 10,000 नेट प्रॉफिट प्लस 2,000 डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट माइनस 1,000 डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मीन्स आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 11,000 आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपका जो भी 25-26% इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेफर्ड टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का प्रोविजंस करना भी बहुत जरूरी है। हम लोग ये देखेंगे डेफर्ड टैक्स असेट्स कब होता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब होता है। Income as per book is more than the taxable income, then we have to pay less tax as per income in the books of we have to pay the more tax in the futures. Suppose आपका बुक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है,
एज कंपेयर टू इनकम टैक्स के हिसाब से। तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट कम है, उसके लिए आप टैक्स पे कम कर रहे हैं, इन फ्यूचर में आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का प्रोविजन करना है। सिमिलरली बुक्स का जो प्रॉफिट है वो कम है, बट इनकम टैक्स का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है। मीन्स इस केस में क्या कर रहे हैं आप, इनकम टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, इन फ्यूचर में इनकम टैक्स आपको कम पे करना है। इट मीन्स इट इज अवर डेफर्ड टैक्स असेट्स, अपने को डेफर्ड टैक्स असेट का प्रोविजन करके लेना है। जैसे एक साल में डेफर्ड टैक्स असेट आएगा, दूसरा साल में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी, ये सब जो है वो टेम्पररी डिफरेंस है। इन फ्यूचर में आप उसको राइट ऑफ शटअप करके आप एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2000 एंड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 1000, ये जो डिफरेंस है इट इज डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर 25% हम चार्ज करेंगे। ये 250 जो है ये डेफर्ड टैक्स असेट्स है। इधर क्या हो रहा है, अपना 2000 इनकम अपना कंपनी एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज किया, उसके लिए अपना क्या हुआ, कंपनी एक्ट के हिसाब से अपना प्रॉफिट कम हुआ, उसके लिए इधर इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट अपना ज्यादा है, उसके लिए आपको डेफर्ड टैक्स असेट इधर क्रिएट हो जाएगा। कुछ डाउट है इसके बारे में, ये थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्टी है, किसी को इसके बारे में डाउट है आप मेरे को क्वेरी आंसर क्वेरी में सेशन में आप पूछ सकते, नहीं तो आप अपने को डिस्कशन में भी पूछ सकते हैं और अपना ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैंडेटरी कुछ कंप्लायंस है। मैंडेटरी कंप्लायंस क्या क्या है इसमें, एक तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो मंथ है सितंबर मंथ, आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट 9 तारीख से पहले फाइनलाइजेशन होना चाहिए, उससे पहले आपका यूडीएन भी क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो आप 21 डेज का क्लियर नोटिस आप एजीएम के लिए आप भेज नहीं सकते शेयर होल्डर के लिए। उसके लिए आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप एक देख लीजिए आपका जो भी बैलेंस शीट है वो 9 तारीख से पहले फाइनल हुआ क्या नहीं, उससे पहले आपका यूडीएन जनरेट किया क्या नहीं, क्योंकि कंपनी एक्ट के हिसाब से आपका 21 डेज का क्लियर नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। सपोज आपने बैलेंस शीट नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं किया, आरओसी को भी नहीं सबमिट किया, पीएन अपना इनकम टैक्स को भी आपने सबमिट नहीं किया, तो उधर 1 ईयर आपको इम्प्रिजनमेंट का भी नोटिस आरओसी के हिसाब से नोटिस आपको भेज सकेगा। दूसरा जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। सपोज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं किया इन टाइम पे, अभी तो डेट बहुत आगे गया हुआ है, बट स्टिल इंटरेस्ट इज कंटिन्यूअसली दे आर चार्जिंग। बहुत सारे लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, डेट तो अभी दिसंबर हो गया तो हम लोग रिटर्न दिसंबर में भरेंगे, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। जैसे जुलाई का जो ड्यू डेट था जो नॉन ऑडिट के लिए, और सितंबर के बाद जो ऑडिट लोग हैं उनके लिए भी अंडर सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगने वाला है। उसके लिए जिसका भी टैक्सेस पे करना है वो सितंबर से पहले आप पे करके आपका रिटर्न्स बाद में भरो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आप यू पे द इनकम टैक्स, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट लगेगा। और डिले करने से क्या होगा, आपको सेक्शन 271F में 10,000 इनकम टैक्स का पेनल्टी भी आपको लगेगा। अब सपोज इनकम टैक्स रिटर्न इन टाइम पे नहीं फाइल किया। अभी हम लोग जो कंप्लायंस पार्ट में डिस्कशन किया, बाकी केस में सिर्फ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको आरओसी को भी फाइल करना पड़ता है, आरओसी को आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उधर भी बहुत बड़ा पेनल्टी है। 12 टाइम्स जो भी ओरिजिनल फी सपोज 300 है, आपको 12 टाइम्स मीन्स उसका 12 टाइम आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, और पर डे 100 रुपीज वो पेनल्टी भी चालू रहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसिक्यूशन का भी नोटिस आपको इशू कर सकते हैं एमसीए में। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन करना है, प्राइवेट लिमिटेड में आपको बिजनेस करना है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट उसके साथ में आप सपोज प्रॉपर कंप्लायंस किया तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके कंप्लायंस में बहुत केयरफुल होना चाहिए, तो ही आपका बिजनेस में ज्यादा स्मूथली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं। नहीं तो मेरा फ्रेंड ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया, मेरा दोस्त मेरा रिलेटिव्स ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया, उसके लिए मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है, तो उनके लिए ये सजेस्टेबल नहीं है। आपका कंप्लायंस पार्ट में कुछ सीरियस होना चाहिए, तो आपको इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। अंजलि मैडम, यू कैन स्टार्ट विथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। Yes, sir. Thank you. Manufacturing private limited companies. So what is manufacturing business? A manufacturing business is any business that uses components, parts, or raw material to make a finished good.
These finished goods then can be sold directly to customers or other manufacturing businesses that use them for making a different product. Manufacturing plants often use an assembly line, which is a process where a product is put together in sequence from one workstation to another. By moving the product down an assembly line, the finished goods can be put together quicker with less manual work. Next page. So tax benefits to manufacturing units. Section 115BA under the Income Tax Act 1961 provides a concessional corporate tax rate of 15% to the newly set up domestic companies engaged solely in the business of manufacturing or production of an article or thing. The section is applicable to the companies subject to the fulfillment of certain conditions as follows. The company must be set up and registered on or after as prescribed in the Act. Company should not be engaged in any business other than the business of manufacture or production of any article or thing. While computing its total income, the company has not claimed any benefit of deduction under certain prescribed provisions of the Act, such as reduction of SEZ units, additional depreciation, capital expenditure in specified business, deduction for research and development, Chapter 6A, deduction other than deduction for additional wages of employees. Statutory registers. Statutory registers to be maintained by companies under Companies Act are as follows. Register of investments not held in its own name by the company. Register of deposits. Register of securities bought back. Register of charges. Register of members. Index of members and debenture holders and security holders. Register of debenture holders. Foreign register of members or debenture holders outside India. Register and index of beneficial owners. Minutes of general meetings. Proper books of account and other relevant books and papers and financial statements for every year. Register of contracts with related party and contracts and bodies, etc., in which directors are interested. Register of directors, managing director, manager, full-time director, secretary, and their shareholding. Register of loans made, provided, or investment made and acquisition made by the company. Register of renewed and duplicate share certificates. Register of particulars of investment of producer companies. Register of sweat equity shares options. Register of employee stock options. Register of beneficial owners holding significant beneficial interests. Earnings per share. EPS is the portion of a company's profit that is allocated to every share of the stock. Generally, investors look at the EPS before investing in any company. The higher the earnings per share of a company, the better is its profitability. For example, if the net profit of the company is rupees 3 lakhs after tax, number of shares are 30,000, then the earning per share is 3 lakhs divided by 30,000, that is 10 rupees. Next page. So a final thought on private limited company. Private limited company has better global recognition as compared to other entity. Rating and reliability are high for doing global business and to get bank finance. Good reputation for yourself and your company is an invaluable asset that is not reflected in the balance sheet. So with this, we finish private limited company. Over to you, sir. Thank you, madam. Manufacturing company.
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबके लिए पता है क्या मैन्युफैक्चरिंग है, जस्ट उसका बैकग्राउंड के लिए लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मीन्स रॉ मटेरियल लेके प्रोसेस करके कुछ फिनिश प्रोडक्ट करके उसको बेचना है। लीगल डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इसको बोलता है कि जैसे रॉ मटेरियल आपने लिया, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स आप बेचना है, उसका नाम अलग होना चाहिए। जैसे रॉ मटेरियल का नाम अलग होना चाहिए, जो फिनिश प्रोडक्ट का नाम अलग होना चाहिए, और उसको प्रोसेस होना चाहिए। ये लीगल डेफिनेशन में है। और असेंबल भी करके आपने कुछ फिनिश प्रोडक्ट करके आपने सेल किया, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए टैक्स बेनिफिट है अंडर सेक्शन 115 BA। सपोज आप कंपनी फॉर्मेशन किया और उसका एक्टिविटी जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन और आर्टिकल और थिंग्स आपका एक्टिविटी है, तो आपको 15% टैक्स का कंसेशन है उसमें। उसके लिए क्या कंडीशन है? एक तो आप कंपनी रजिस्टर करना चाहिए। कंपनी शुड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंपलसरी होना चाहिए। ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए नहीं है, सर्विस के लिए भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ओनली स्पेसिफिकली टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दिया हुआ है। उसके लिए टैक्सेशन पार्ट भी कम किया हुआ है। गवर्नमेंट का पर्पज ही ये है, कंपनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आना चाहिए, उसका जो भी कंप्लायंस पार्ट है वो सब सिस्टमेटिक होना चाहिए, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरा जो कंडीशन है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये फॉलोइंग डिडक्शंस आप नहीं क्लेम करना चाहिए। कुछ कंपनी के लिए एक स्पेशल डिडक्शंस होता है। सपोज आपका कंपनी SEZ यूनिट्स में है, आपके लिए अलग डिडक्शंस रहता है। सपोज आपने मशीनरी लिया, प्लांट एंड मशीनरी, आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% एक्स्ट्रा मिलता है, वो भी डिडक्शंस आप नहीं लेना चाहिए, तो आपको 15% आपको कंडीशन में आप बैठेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया, उसके लिए भी कुछ डिडक्शंस होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके लिए डिडक्शंस मिलता है आपको अलग सेक्शन में। और चैप्टर 6A का डिडक्शंस भी आप नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट जैसे आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ज्यादा से ज्यादा, इफ यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन 1000 एम्प्लॉयमेंट, आपके लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट डिडक्शंस मिलता है, वो डिडक्शन आपको मिलेगा। वो छोड़ के बाकी कौन सा भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। सपोज आपने 15% स्लैब में आपने गया, इसमें ऑब्जर्व किया तो ऐसे दिखेगा थोड़ा फॉर गवर्नमेंट ने आपको इस हाथ से टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं और दूसरा हाथ से कुछ बेनिफिट वापस ले रहे। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जिनका SEZ यूनिट्स नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन आप नहीं लेना चाहते, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट आपको ज्यादा से नहीं है कंपनी में, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं है, उनके लिए 15% का जो बेनिफिट है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ रजिस्टर आपको मैंडेटरी मेंटेन करना है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी मींस आपको खुद के लिए बनाना है, ऐसे कुछ एक्ट में ऐसे नहीं किया 100% आप इसको मेंटेन करना है। कुछ रजिस्टर ओनली वी हाउ टू मेंटेन मैंडेटरी, सम रजिस्टर इट इज नॉट मेंटेन मैंडेटरी, इट इज ओके। तो सभी रजिस्टर आप मेंटेन करने से क्या फायदा होगा, आप इन फ्यूचर में सपोज आपका कंपनी कुछ इन्वेस्टर आना चाहते हैं आपका कंपनी में, नहीं तो अपनी कंपनी को आप सेल आउट करना चाहते, तो जितना आपका कंपनी का कंप्लायंस पार्ट अच्छा रहेगा उतना आपका कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। ये वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए ये जो कंप्लायंस पार्ट है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आपको चालू करना है तो ISO जो सर्टिफाइड आपको कंपलसरी होता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। ऐसा ही आपका स्टैट्यूटरी रजिस्टर कंप्लायंस पार्ट आप अच्छे से मेंटेन करने से आपका कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। इधर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रजिस्टर दिया हुआ है, वो कौन सा आप रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन इट्स ओन नेम बाय द कंपनी, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज बाय बैक, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। रजिस्टर ऑफ चार्जेस मींस सपोज आप कुछ लोन्स लिया बैंक से, तो आप कौन सा असेट आपने मॉर्गेज किया बैंक को, उसके लिए आप रजिस्टर ऑफ चार्जेस करना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इंडेक्स ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर, minutes of the general meeting, proper books of account and other relevant books, paper and financial statement for every year, list of contacts। अब सपोज कौन सा कंपनी को आपने कांटेक्ट किया, रिलेटेड पार्टी है, सपोज एक एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी का जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर है वो वाई कंपनी में भी डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर है, उनके साथ में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, मीन्स उनसे कुछ आपने परचेज किया,
उनसे कुछ सेल्स किया, वो भी ट्रांजेक्शन आपको रिलेट ये रजिस्टर में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ये सब आपको डायरेक्टर रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रजिस्टर फॉर लोन मेड, प्रोवाइडेड, इन्वेस्टमेंट मेड and acquisition made by the company. Register of renewed and duplicate sales certificate, register of particular investment of producer company, register of state equity sales options, register of employee stock options, register of beneficial owner holding significant beneficial interest. ये सब रजिस्टर आपको मेंटेन करना जरूरी है। कुछ इसमें मैंडेटरी है, कुछ रजिस्टर मैंडेटरी नहीं है, बट सब मेंटेन करने से आपका कंपनी का एक कंप्लायंस पार्ट बढ़ेगा और वैल्यूएशंस भी आपका कंपनी का बढ़ सकते हैं। मींस यू आर शोइंग, यू आर मेंटेनिंग वेरी गुड रिकॉर्ड्स एंड वेरी ट्रांसपेरेंसी, उसके लिए आपका कंपनी का वैल्यूएशंस बढ़ना चांसेस होता है। अर्निंग पर शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है। जैसे आपका बैलेंस शीट प्रेजेंट करेंगे तो आपको ईपीएस भी आपको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। ईपीएस क्या होते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मींस आपको पर शेयर आपको कितना रिटर्न्स मिलने वाला है। दिस इज वन ऑफ द रेशियोज। जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ईपीएस एक सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आप इसको देख सकते हैं। जो कौन सा भी कंपनी का ईपीएस रेशियो कितना है, जितना रेशियो उसमें अच्छा रहेगा उतना आपको डिविडेंड और उनका रिटर्न मिलेगा, वो कंपनी का वैल्यूएशन भी अच्छा रहता है। उसके लिए आपको दिस इज वन ऑफ द ईपीएस रेशियोज आप देख सकते हैं जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज ए बेटर ग्लोबल रिकॉग्निशन एज कंपेयर टू अदर एंटिटी। जैसे हम लोग डिस्कस किया, जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहता है तो ग्लोबल में उनको ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्निशन होता है। रेटिंग एंड रिलायबिलिटी आर हाई एज इन डूइंग द ग्लोबल बिजनेस एंड गेट बैंक फाइनेंस। आपका जो रेटिंग है और रिलायबिलिटी जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। जब भी हम लोग बहुत सारे कंपनी में देखता है कि जैसे आप केबिन के बाहर एमडी बोल के लिखा हुआ रहता है, दे आर इन प्रोप्राइटरी बिजनेस बट स्टिल दे आर राइटिंग एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग। यू आर ए मैनेजिंग प्रोप्राइटर एंड मैनेजिंग पार्टनर्स, यू आर नॉट ए मैनेजिंग डायरेक्टर्स। इसके लिए आप जो भी है आप डिफरेंस इसको समझ के लेना बहुत जरूरी है। मैनेजिंग प्रोप्राइटरी क्या होता है, मैनेजिंग पार्टनरशिप फर्म क्या होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या होता है। बहुत सारे कंपनी में हम लोग देखा तो उनको ऐसा लगता है कि एमडी का केबिन है, बट एमडी का डेफिनेशन वो डायरेक्टर इज ओनली एप्लीकेबल टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपका सपोज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, आप एमडी वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है। आपको बोर्ड यूज करते टाइम में ये कंपलसरी है। आपको आपका कंपनी का सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी XYZ आपका कंपनी है, उसके सामने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना बहुत जरूरी है। वो प्राइवेट लिमिटेड में एक मैंडेटरी है, आपका XYZ एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना बहुत जरूरी है। गुड रेपुटेशन ऑफ योर reputation for yourself and your company is an invaluable asset that is not reflected in the balance sheet. आपका जो रेपुटेशन से आपका और आपका कंपनी का ये जो इनवैल्यूएबल असेट्स है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। मींस आज की इसमें आपको कंप्लायंस पार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपने इथिकली बिजनेस किया, जैसे इन टाइम पे टीडीएस पे किया, इन टाइम पे आपने जीएसटी पे किया, इन टाइम पे आरओसी कंप्लायंस किया, इन टाइम पे इनकम टैक्स का कंप्लायंस किया, ये जो रेपुटेशन बिल्ड होता है, ये मार्केट में रेपुटेशन बिल्ड होता है, ये आपका गुडविल होता है, वो आपका बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा बट वो मार्केट में आपका रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन टाइप पे आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया विद इन 45 डेज में, ये जो रेपुटेशन है ये बैलेंस शीट में नहीं दिखता है बट ये आपका रेपुटेशन बाहर दिखते, इससे आपका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ग्रोथ होता है। आज हम लोग इधर ही रुकेंगे, अभी ऑलमोस्ट 6:22, so we have another 5 to 8 minutes. If you have any queries related to today's sessions, you raise your hand, I will unmute and you can ask the question. Thank you for all. Thank you, madam, and thank you all participants. If you have any queries, you can in the chat box or otherwise you raise hand. I will do the unmute. Satish sir, you written. Can you include in WhatsApp group gist of book and what is covered, or scan content pages? Is it for CAs or for all with basics? You want the chapter's name, sir? Satish sir, you can. Satish sir, you can ask. Yeah. Are you able to hear? Yeah, sir, please. No. See, I just came to know the title of the book, Know Your Balance Sheet. I didn't know what exactly is it. Is it too technical for the person, or it is? I'm not a CA, but I just wanted to understand the basics. Clear? Is it meant for who is the target audience? I was not very clear. This book is specially for a non-financial businessman, sir. And
Yes, especially for manufacturers, specifically because considering my 15-year experience in manufacturing field, what I Okay. observed, the non-financial businessmen, they are very technically sound in their field. Means engineering field, they are very sound in, but in financial field, they are neglected part is the finance, and due to Very that, good. their business getting losses, and otherwise they are not getting more profit. Okay. So considering this, and I am written this book only specifically for non-financial people, not for CS. And this book is very practical for accountant also. Those who are accountants working in the company, and how they maintain the accounting, because accountant is a very important while doing your accounting. If they are very skillful accountant, if they are having good knowledge, they can prepare a good books and they will give you good correct profit and loss, whatever your company having. If the accountant is not good, in that case, it is very difficult to get your realistic result. So for them also, this book is very useful, as well as CA student, those who are doing article C or in working in finance department, those who are fresher, otherwise become graduate students, those who are just want to go for an account career, for them also this book is very useful for them. Sir. Is it available in Amazon, or you have to get Yeah, it is available in Amazon also. Otherwise, I will share the link, because Amazon it's costly, sir. I will share a link in groups, and you can purchase in that link also. I will do that. Yes. Okay. Thank you. Right. Any other queries? We take a hand loan from friends. So, what for the next? Sir, if you've taken already loan, that is actually non-compliance part, and that you have to repay it first. That is the solution. And actually in future you take care of it if you are having private limited company. Any other queries? If you have any other queries, you can post in groups. I allowed know your balance sheet group up to 8 p.m. and you can ask any question. And the next week session is private limited company and public limited company and listed company. It's a also very important. What is the public limited company and how the listed company work? And we will meet next week in the same